خداوند کی حمد کرو۔ میں راست بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کے کام عظیم ہیں، جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں۔ اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں، اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ اس نے اپنے عجائب کی یادگار قائم کی ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے۔ وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس نے قوموں کی میراث اپنے لوگوں کو دے کر اپنے کاموں کا زور ان کو دکھایا۔ اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پرعدل ہیں، اس کے تمام قوانین راست ہیں۔ وہ ابدالآباد قائم رہیں گے، وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اس کا نام قدوس اور مہیب ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنے والے دانشمند ہیں۔ اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدائے قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگرچہ خدا ہم جماعت کی صورت میں اکٹھے نہیں ہو سکے، لیکن جہاں بھی تیرے ایماندار لوگ جمع ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ تم نے وعدے کے مطابق ان کے بیچ میں ہے۔ تیرا تخت تیرے لوگوں کے درمیان لگا ہے۔ خدا تو ہر ایک کو چھو برکت دے۔ تیرے بیٹے یسوع کا نام ہر ایک کی زندگی میں جلال پائے۔ خدا تو ہر ایک کے ساتھ اور یہ عبادت ہم میں سے ہر ایک کی برکت کا باعث ہو۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ آن لائن اس عبادت میں شامل ہیں، سبھی پر تیری برکت مانگتا ہوں۔ تو اپنا ہاتھ بڑھا، ہمیں چھو اور ہماری مدد کر۔ تیری برکت ہمارے ساتھ ہو۔ تیرے پاک روح کا مسا اور معمولی مانگتے ہیں، تاکہ جب ہم اپنے خاندانوں میں اپنے عزیزوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر تیری عبادت کرتے ہیں، تو خدا سبھی لوگ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کے گھرانے، ان کے عزیز سبھی برکت پائیں۔ خدا آج کی یہ عبادت ہماری برکت کا باعث ہو اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا باعث بن سکے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کمواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر،
पाक खुले कलीसिया पर मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 48 गाएंगे। ज़बूर नंबर 48 तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे ध्यान। ज़बूर नंबर 48, ज़बूर नंबर 48।
महफूज रखा है। खुदावंद ने हमारी हिफाजत की है। दुआ करेंगे खुदावंद आइंदा भी हमारी हिफाजत करे, हमारी कलीसिया की हिफाजत करे, हमारी कलीसिया को जिंदा कलीसिया और ईमान रखने वाली, ईमान में मजबूत कलीसिया बनाए। एफसी कॉलेज के लिए दुआ करेंगे खुदावंद इस अदारे को बरकत दे, इस अदारे को चलाने वाले तमाम अफसरान, सिक्योरिटी ऑफिस और जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी को खुदावंद बरकत दे, उनको चलाने वालों को बरकत दे, ताकि उनके ज़रिए से ये अदारा तरक्की कर सके। अब पूरी पाकिस्तानी कलीसिया के लिए और पूरी आलमी कलीसिया की दुआ करेंगे कि खुदावंद मसीही कलीसिया की दुनिया के किसी भी कोने में है उनकी हिफाजत करे और उनको ईमान में मजबूत करे, ताकि यीशु की गवाही हो सके। हम पूरी दुनिया से कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद फजल करे, हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारे मुल्क से कोरोना खत्म हो और पूरी दुनिया से भी कोरोना खत्म हो सके। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और भाई बिशारत इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। कदूस कदूस खुदा कादिर, अब्दियत के बादशाह सलामत के सज़े खुदावन, मैं थागरानी से तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू जो इस ज़मीन पर आया और खुदावन तूने हमारे लिए अपना फिदिया देकर खुदावन बड़ी मोहब्बत से तूने हम सबको अपनी हिफाजत में रखा और हमें बख्श दिया कि हम तेरे वाकई बेटे और बेटियाँ तेरे फरजान बरकसीदे कहला सकें। ये तेरा सबूत है कि खुदावन आज तेरे हजूर में ये जिंदा कलीसिया की तरह ये मौजूदगी खुदावन तेरी मोहब्बत को ज़ाहिर करती है, ये तेरे प्यार को, तेरी शफ़क़त को ज़ाहिर करती है कि तू हमारे साथ है। तेरा दाहिना हाथ हम सब पर बढ़ा हुआ है। यीशु तेरा शुक्र करते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह की खातिर जिसने हमारे लिए फिदिया दिया और खुदावन अपनी जान कुर्बान की और हमारे लिए खून बहाया, हम सबको अपने पाक खून की कीमत से खरीदा। यीशु तेरे शुक्र करते हैं इस मोहब्बत के लिए। ऐ पहलवर के मालिक, आसमानी बुजुर्ग बाप, दिल की थागरानियों से भी शुक्रगुजार है कि तू हमारा जो फिक्र करने वाला यीशु है, अच्छा चरवाहा है जो हमारी हर वक्त फिक्र करता है। यीशु तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदावन इस बड़ी आशान के लिए, ऐ खुदावन तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे आगे सर झुकने के लिए खुदावन तेरे शुक्रगुजार है। ऐ खुदावन जितने भी इस वक्त मौजूद हैं खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, एक एक को छू और ब्लेस कर। ऐ खुदावन अच्छा तो नहीं लगता कि तेरे घर में ये तेरे लोग, तेरे बेटियां और बेटे कसरत से नहीं आ सकते। ये कोरोना जैसे खौफ को यीशु के नाम से ऐ खुदावन अपनी सलीब की खातिर इस खौफ को ख़त्म कर। ऐ खुदावन जिस तरह तूने सलीब पर हम सबको माफ़ किया, आज़ादी बख्शी, इसी तरह खुदावन इस खौफ से आज़ादी बख्श, ताकि ये तेरा घर, ये तेरा कहना तेरे बरजीतों, तेरे बेटियों से भर जाए, ताकि हम सब तेरे जलाल को ज़ाहिर कर सकें। ऐ खुदावन हम एक कायम और दायम तेरी जिंदा कलीसिया कहला सकें जो तेरे नाम को खुदावन बुलंद करे, तेरे जलाल के लिए काम करें। आए खुदावन जितने भी इस वक्त तेरे आगे सर झुके हुए, ऐ खुदावन जो लोग इस वक्त तेरी मौजूदगी में, तेरे सामने, तेरी हजूरी में हैं, ऐ खुदावन उनकी ज़िंदगी को बदला। ऐ खुदावन इस कोरोना जैसे खौफ से बचा कर, ताकि हमेशा जब तक ज़मीन पर जिंदा रहें तेरे जलाल को ज़ाहिर करते रहें, उनकी ज़िंदगियों में से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ ऐ खुदावन इस लम्हा के लिए जो तूने मुझे बख्शा कि मैं तेरे स्टेज पर तेरे पास आकर तेरी हजूरी में खुदावन आ सकूँ। खुदावन तेरा भारी फजल है मेरे लिए। ऐ खुदा मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे अक्ल दिलाई फहम अता कर, मुझे दुआ करनी सिखा, ताकि मैं तेरे हजूर अच्छे लफ्ज़ों से ऐ खुदावन तेरी दिल पसंदी से तेरे हजूर आ सकूँ जो तुझे पसंद हो। ऐ खुदावन मेरा चलना फिरना उठना बैठना खुदावन तुझे पसंद है। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर रबर कबर के लिए तो तूने हमें बहुत अच्छा पासबान बख्शा है जो हमारी फिक्र करता है और हमारे साथ चलता है। ऐ खुदावन मैं पास्टर रबर कमर को, इसके ख़ानदान को, इनके बीवी बच्चों को, इसके पूरे घर को तेरे पाक फरिश्तों के बाहर मांगता हूँ। ऐ खुदावन कभी तो पाली छुपाली खुदावन तो वहाँ पर छूने ना पाए, बल्कि खुदावन उस बाउंड्री पर हमेशा तेरे पाक फरिश्तों का पहरा लगा रहे और खुदावन तेरे जलाल को ऐ खुदावन ज़ाहिर करते रहे। जहाँ कहीं भी जाए ऐ खुदावन दूर दूर तक खुदावन तेरे जलाल को ज़ाहिर करें। उनकी ज़िंदगियों से बहुत सारे मौज़ात हों ऐ खुदावन, उनके ऐसे पितराना मोहब्बत जो उनके साथ तेरी चल रही है ऐ खुदावन बहुत सारी ज़िंदगियों को तेरे पास ला सके। ऐसा
तौफीक अता कर, ऐसा ज़हन, ऐसी अक्ल, ऐसी हिकमत और भी ज़्यादा अता कर, ताकि तेरा बंदा तेरे नाम को और अच्छी तरह से फैला सके। ऐ खुदावंद एफसी कॉलेज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, इस बड़े अच्छे अदारे के लिए जो खुदावंद तेरे खून से खरीदा हुआ है। ऐ खुदावंद मैं इसको सारे चलाने वालों के लिए मैं तुझसे विनती करता हूँ। ऐ खुदावंद एक एक को छू और ब्लेस कर, अपनी दी हुई हिकमत से उनको नवाज। जैसे खुदावंद जॉन अभी साहब को खुदावंद जितने भी यहाँ पर काम करने वाले हैं, ऐ खुदावंद सबको एक एक को खुदावंद मैं तेरी हजूरी में तेरी हिकमत को मांग लेता हूँ, ताकि वो खुदावंद इस इदारा को बड़े अच्छे तरीके से वो चला सके। कर्नल साहब को जो सिक्योरिटी डायरेक्टर है, खुदावंद उनको अपनी दी हुई हिकमत अता कर, उसके सारे अमला को, ताकि खुदावंद इस बाउंड्री में, इस जगह पर खुदावंद वो तेरी दी हुई हिकमत के साथ काम करे। जैसे मैडम आयरन दास हैं और खुदावंद डगलस साहब हैं और मैडम शारन हैं और भी जितने खुदावंद बड़े काम करने वाले हैं, खुदावंद तेरी दी हुई हिकमत के साथ इस अदारे को चलाए। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ सारे अदारे के लिए, सारे खुदावंद शोबों के लिए, सारे पार्ट्स के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांगता हूँ। यहाँ पर तेरा खास खुदावंद पाक फरिश्तों का पहरा हमेशा लगा रहता है और तेरी पाक हजूरी हमेशा रहती है। हर बशर खुदावंद तुझे कदूस कर कर और हर वक्त पुकारता है। खुदावंद ये तेरी खास मोहब्बत है, तेरे शुक्रगुजार हैं इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए, इन लफ्ज़ों के लिए जो तूने बख्शता है। खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के लिए जो तूने खुदावंद कोरोना जैसी वबा से लोगों को खौफ व हवास में दबा रखा है, खुदावंद तू इस बीमारी से सबको आज़ादी अता कर। ऐ खुदावंद मुल्क पाकिस्तान को ऐ खुदावंद अपनी पितराना मोहब्बत की लपेट में ले, और जितने भी लोग तेरे बरगज़ीदे, तेरे बेटियों, तेरे फरजान हैं, ख़ास तौर पर उन पर खुदावंद तेरा हाथ बढ़ा रहे। और खुदावंद पूरी दुनिया में ऐ खुदावंद जहाँ कहीं भी तेरे लोग आज़ारसानियों में हैं, खुदावंद मैं मेहनत करता हूँ कि खुदावंद उन सबको आज़ादी बख्श, अपने पाक खून से धोकर साफ कर और कोरोना जैसे वबा से ऐ खुदावंद उनको बचा कर। ऐ खुदावंद खुदा फिर मैं मांगता हूँ इस कलीसिया को जो तेरे आगे इस वक्त सरगू है, ऐ खुदावंद इनकी ज़िंदगी को बदला, इनकी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर है। और ख़ास तौर पर खुदावंद हम जो इस वक्त तेरे घर में मौजूद हैं, तेरी हजूरी में हैं, ऐ खुदावंद गाने और बजाने में और खुदावंद कलाम करने में और काम करने में, खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ जो तूने हमें ये शर्फ अता किया कि हम तेरे हजूर में आए और बड़ी आज़ादी के साथ हम तेरे नाम को पुकार सकें। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 130, ऐ यहोवा दे लोग उस ते रखो ईमान। ज़बूर नंबर 130, ज़बूर नंबर 130, ऐ यहोवा दे लोग उस ते रखो ईमान, जो भारी जात है विचोले Yo
हमारी हर किस्म की जिस्मानी तकलीफ, परेशानी, दर्द, बीमारी, बुखार की आलाइश यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जितने लोग ब्लड प्रेशर, शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनीज की प्रॉब्लम्स हैं या कोई जिस्मानी दर्द है, यीशु के नाम से उस दर्द को हुक्म देते हैं खत्म हो जाए। खुदावंद हम अपने इख्तियार से नहीं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं और हम एक दिल होकर, मुत्तफिक होकर अपने लिए और अपने घरानों के लिए शिफा मांगते हैं। और खास तौर पर खुदावंद जिन्होंने दरखास्त की है उनकी दुआ की जाए, उन्हें भी तेरी हुजूरी में याद करते हैं। पास्टर डैनियल खादम साहब को, इसी तरह से भाई जिक्रिया भट्टी को, इस तरह से यूनुस साहब को, उनके घराने को, भाई तरमीन को, इसी तरह से खुदावंद भाई शहजाद नेमत को और भाई नईम तबस्सुम को और भाई एमैनुएल को, मिसेस रिशबा कमाल को, मिसेस नज़ीर ज़ियाई को और भी जितने लोग हमारे कलीसिया में बीमार हैं सबको तेरी हुजूरी में याद करते हैं। तो अपने फजल से हर एक को छू और शिफा दे। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत से सभी दूर जाएं। जो लोग बुखार में मुब्तला हैं यीशु के नाम से शिफा पाएं। खुदा इस दुनिया से कोरोना को ख़त्म कर। तेरे बेटे यीशु के नाम से कोरोना ख़त्म हो जाए। तेरी कुदरत ज़ाहिर हो। तू रहम कर खुदावंद, तू हमारे मुल्क पर रहम कर, हमारे शहर पर रहम कर, हमारी कलीसिया पर रहम कर, ताकि खुदा हम महफूज हो जाएं, हम पाक हो जाएं, हमारे जिस्म में से हर किस्म की बीमारी के जरासीम खत्म हो जाएं और खुदा हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात हों। हमारी कलीसिया में तेरे औलाद जोड़े हैं, खुदा उन्हें भी शिफा दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा हो। तेरी कुदरत ज़ाहिर, तेरी तरफ से औलाद की नेमत मिले। खुदा तू रहम कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। इस वक्त हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे
कलाम मुक़द्दस में से अमाल की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 10। नए अहदनामे में से अमाल की किताब उसका 3रा बाब उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और इस तिलावत में हमारा रहनुमाई सुलेमान अनवर करेंगे। नए अहदनामे में से ईमान की किताब उसका 3रा बाब उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मांगने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यसू मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़ हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। कलाम के इस हिस्से का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। इस वक्त हम कलाम मुक़द्दस को सुनने से पहले, कलाम में से सुनने से पहले दुआया रूह में गीत गाएंगे। गीत नंबर 354, गीत नंबर 354, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। गीत नंबर 300, माफ कीजिएगा, रूह की बारिश बरसा चाहती है। गीत नंबर 354, 354। रूह की बारिश बरसा चाहती है।
रहनुमाई में दे दे। तेरे पाक रूह की मदद मांगते हैं। ए बाप, मैं अपने लिए भी तेरे पाक रूह की मदद को मांगता हूँ। तो अपने पाक रूह के वसीले से मुझे इस्तेमाल कर, ताकि तेरी आवाज़, तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँच सके। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम बड़ी तरतीब के साथ अमाल की किताब में से शागिर्दों के कामों को और इब्तदाई कलीसिया के कामों को सीख रहे हैं। और गुज़श्ता बार हमने इब्तदाई कलीसिया की ज़िंदगी को देखा कि इब्तदाई कलीसिया ने, जब कलीसिया कायम हुई तो वो क्या करते थे, उनका ईमान कैसा था और वो लोगों के लिए कैसे बरकत का बायस था। आज भी हम उसी कलीसिया की और शागिर्दों की एक और बड़ी अहम जिम्मेदारी को देखेंगे जो उन्होंने इब्तदाई तौर पर इब्तदाई कलीसिया को कायम करते हुए सर अंजाम दी। और इस हवाले का आगाज़ उसी एक खूबी से होता है जिसको हम गुज़श्ता अतवार भी सीख चुके हैं कि शागिर्द, एक कलीसिया जो थी और शागिर्द जो थे वो इकट्ठे मिलकर दुआ किया करते थे। यहाँ पर तीसरे बाब की पहली आयत बताती है कि पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। ये तीसरे पहर के वक्त के बारे में जानने की जरूरत है कि ये कौन सा वक्त था। यहूदी वक्त को दिन में 4 हिस्सों में तकसीम किया गया, 3-3 घंटे का एक पहर। ये सुबह 6 बजे से शुरू होता है और उस वक्त यीशु की ज़िंदगी में, यीशु की खिदमत के दौरान ये 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया। और इसी तरह तीसरे पहर के वक्त हम खुदावंद यीशु मसीह का चौथा कलमा भी देखते हैं। उस वक्त वहाँ पर भी तीसरे पहर का जिक्र है। और यहाँ पर भी तीसरे पहर के वक्त दुआ करने के लिए शागिर्द हैकल में जा रहे थे। यहूदियों के लिए हैकल में जाकर दुआ करना या दिन में 3 दफ़ा दुआ करना बड़ा अहम था और वो पहरों के मुताबिक था। सुबह 6 से 9 बजे तक एक पहर, फिर उसके बाद 9 से 12 बजे तक दूसरा पहर, फिर 12 से 3 बजे तक तीसरा पहर और फिर 3 से 6 बजे तक चौथा पहर। उसके साथ दिन का इख्तिताम, 6 बजे दिन का इख्तिताम हो जाता। और यहूदी लोग 3 दफ़ा दुआ के लिए, जो बड़े ईमानदार या नेक या रास्तबाज या खुदातर से यहूदी थे, वो ज़रूर खुदा की हुजूरी में दिन में 3 बार जाते थे। हम ज़बूर की किताब में देखते हैं, ज़बूर की किताब और 55वां ज़बूर और उसकी 17वीं आयत में हम गाते भी हैं, शाम सुबह दोपहर में मैं फरियादा गुजराना। और इसकी आयत ये है, सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूँगा। तो पंजाबी में सुनेगा रब सोन रोना मेरा नारे सा पुकार। यानी सुबह शाम, सुबह दोपहर और शाम, यानी 3 वक्त यहूदी लोग दुआ करना अपनी बड़ी जिम्मेदारी समझते थे। और बहुत से खुदातर यहूदी दिन में 3 बार दुआ करते थे, किसी भी जगह पर वो इकट्ठे होते थे। लेकिन जो लोग यरूशलेम में रहते थे वो ये ज़रूरी समझते थे कि वो हैकल में जाकर दुआ करें, वो उसको और ज़्यादा बाबरकत समझते थे। इसी तरह से दानियल की किताब में भी हमें दानियल के बारे में मिलता है। या दानियल की किताब उसका 6वां बाब 10वीं आयत में लिखा है कि वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और शुक्रगुजारी करता रहा। यानी दानियल भी 3 बार दुआ करता, सुबह दोपहर शाम। और इसी तरह यहाँ पर भी तीसरा पहर जो है, और यहूदी लोग 3 दफ़ा दुआ के लिए जमा होते थे। और ये तीसरा पहर उसको 9th आवर भी कहा जाता है। यानी 6 से 9 3 घंटे, फिर 9 से 12 6 घंटे और 12 से 3 यानी 9 घंटे, 9th आवर तीसरे पहर को भी यहूदी लोग कहते थे। और ये तीसरे पहर यानी 3 बजे के करीब पतरस और यूहन्ना जो थे वो दुआ के लिए हैकल में जा रहे थे। और वहाँ पर लोग एक फकीर को, यानी मांगने वाले भिखारी को, लंगड़े को बिठा देते थे ताकि वो भीख मांगे। इस मौजज़े के जरिए से हम ये जान पाते हैं कि इब्तदाई कलीसिया का एक अहम जुज़ मौजज़ात का रूनुमा होना था। और इसी बात को हम पिछले गुज़श्ता जो इतवार का मैसेज था उसमें भी सीख चुके हैं। यहाँ अमाल की किताब के दूसरे बाब की 43वीं आयत में लिखा है, बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे, यानी वंडर्स, मिरेकल्स होते थे। ये जो हवाला आज तिलावत किया गया इसमें भी एक मौजज़े का जिक्र है। और फिर उसके बाद अगर हम तीसरे बाब के आखिर में चले जाएं तो वहाँ पर लिखा है कि बहुत से लोग इंतज़ार करते थे कि उनके साए से लोग शिफा पा जाएं, उनके साए के पास आने की कोशिश करते थे। और फिर रुमाल की किताब में ही हमें पौलुस रसूल के बारे में जिक्र मिलता है कि लोग अपना रुमाल उसको छू कर, टच करके लेकर जाते थे ताकि वो अपने अजीज जो बीमार हैं उनको लगाएं और वो शिफा पा जाएं। यानी इब्तदाई कलीसिया का एक अहम खूबी, अहम हिस्सा जो था वो मौजज़ात का रूनुमा होना था।
और यहाँ पर जो मौजज़े के बारे में सीखा है, देखा है, इसको हम आज सीखने की कोशिश करेंगे कि मौजज़ात कलीसिया के लिए क्यों ज़रूरी थे, आज क्यों ज़रूरी हैं, उनका सबब क्या है और आज मौजज़ात के वसीले से क्या मुमकिन हो सकता है। मौजज़ात इसलिए कलीसिया के लिए ज़रूरी थे, खुदाई कलीसिया के लिए, कि यीशु ने अपनी खिदमत के दौरान ही खुद भी मौजज़ात किए और शागिर्दों को भी ये जिम्मेदारी सौंपी। अगर हम मुकद्दस मरकज़ की इंजील के तीसरे बाब को देखें, जब यीशु ने शागिर्दों को चुना और उन्हें मुकर्रर किया, उन्हें भेजा कि वो मुनादी करें, और इस तरह से मुकद्दस लूका की इंजील के 9वें बाब में उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि यीशु ने उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। यानी यीशु की जो खिदमत की अहम हिस्सा था वो शिफा था, और यीशु की खिदमत के 3 अहम हिस्से समझे जाते हैं, टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग। ये यीशु की खिदमत के 3 अहम हिस्से थे, और उसमें से एक हीलिंग यानी शिफा है। यीशु ने तालीम दी, यीशु ने मुनादी की और यीशु ने शिफा दी, और यही जिम्मेदारियां यीशु ने अपने शागिर्दों को सौंपी। शागिर्दों ने भी यही कुछ किया, वो अपने इर्द गिर्द रहने वाली कलीसिया को, लोगों को तालीम देते थे। और ये हम यहाँ पर जो गुज़श्ता अतवार का था उसमें हमने ये सीखा भी है कि वो लोग शागिर्दों से तालीम पाते थे। ये कलीसिया की खूबी थी, यानी शागिर्द तालीम देते थे, फिर उसके बाद उनको मुनादी करके खुदा का कलाम सुनाते थे, खुशखबरी की मुनादी, यीशु की मुनादी होती थी, और फिर शिफा भी देते थे। ये यीशु की तालीम थी, यीशु की खिदमत थी, यीशु की मिनिस्ट्री थी, ये शागिर्दों की मिनिस्ट्री थी, और ये कलीसिया की मिनिस्ट्री है। हीलिंग मिनिस्ट्री जो है, मौजज़ात का रूनुमा होना इब्तदाई कलीसिया के लिए बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये यीशु की खिदमत थी, और यीशु ने इस खिदमत को अपने शागिर्दों को ट्रांसफर किया, उन्हें कहा, उन्हें भेजा कि वो मुनादी करें और मौजज़ात करें, बीमारों को शिफा दें, वो बदरूहों को निकालें। मुकद्दस मरकज़ की इंजील बयान करती है कि वो बदरूहों को निकालें। और मौजज़ात का रूनुमा होना उस वक्त के कलीसिया में, जो इब्तदाई कलीसिया थी, उसमें एक अहम हिस्सा भी समझा जाता था और सच्चाई पर मबनी थी। अगर हम ईमाल की किताब का 4वां बाब और उसकी 16वीं आयत में देखें तो इन मौजज़ात के रूनुमा होने का इकरार जो है वो फरीसी और सरदार काहे भी करते हैं। ईमाल की किताब का 4वां बाब और उसकी 16वीं आयत को देखें। 16वीं आयत में लिखा है ईमाल की किताब और 4वें बाब में कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनसे एक सरीह मौजज़ा हुआ है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर सरदार कहें, सदर अदालत के लोग, फरीसी ये इकरार करते हैं कि हम इनका क्या करें, लोगों में ये रोशन है, लोगों ने देखा है कि ये मौजज़ा रूनुमा हुआ है। यही जो लंगड़े भिखारी को पतरस और यूहन्ना ने शिफा बख्शी, और इससे इनकार ना तो वो लोग कर सकते थे जिन्होंने उस शख्स को देखा था, जो उसको लेकर आए थे, जो बैठाते थे उसे भिखारी मांगने के लिए, और ना ही सरदार काहीन या फिर फरीसी या सदर अदालत के जो लोग थे, यहूदी लोग जो शागिर्दों के इब्तदाई कलीसिया के मुखालिफिन थे, वो भी इसका इनकार नहीं कर सकते थे। मौजज़ात जो यीशु के वसीले से मुमकिन हुए, ना उनका कोई शख्स इनकार कर सका, और ना शागिर्दों के वसीले से जो मौजज़ात रूनुमा हुए उनका कोई इनकार कर सकता था, क्योंकि लोगों के सामने हकीकतन वो रूनुमा होते थे। और ये कलीसिया की तरक्की के लिए और गवाही के लिए बड़ा जरूरी था, यीशु की खिदमत के लिए बड़ा जरूरी था कि यीशु अपने आप को साबित करे कि वो मसीहा है। मसीहा की ये खूबी है कि वो लोगों को रहाई दे। मसीहा की ये एक बरकत है लोगों के लिए कि जब वो आए तो वो मसीहाई करे, वो शिफा दे, और इसीलिए यीशु ने अपनी खिदमत में इसको शामिल किया। शागिर्दों को भी ये जिम्मेदारी सौंपी, और आज कलीसिया की भी ये जिम्मेदारी है। ये मौजज़ात सिर्फ इब्तदाई कलीसिया के लिए नहीं थे कि उन्हें ज़रूरत थी कि वो मौजज़ात दिखाएं और लोग यीशु को जान सकें। ये आज भी इसकी ज़रूरत है। मौजज़ात की ज़रूरत शुरू से आगाज़ से है, जब ने यीशु ने खिदमत का आगाज़ किया। उससे पहले भी मुक़द्दसीन अंबिया जो थे वो मौजज़ात किया करते थे। हमें एलीशा के वसीले से मौजज़ात का जिक्र मिलता है, एलिया के ज़रिए से मौजज़ात का जिक्र मिलता है, एलिया के ज़रिए से शिफा के मौजज़े, एलिया के ज़रिए से जिंदा हो जाने के मौजज़े, एलीशा के ज़रिए से शिफा के मौजज़ात देखते हैं।
इसी तरह से यहाँ पर भी यीशु के वसीले से हम मौजज़ात नए अहमद में देखते हैं, फिर शागिर्दों के वसीले से देखते हैं। कलीसिया में मौजज़ात का रूनुमा होना, मौजज़ात हो रहे थे, अजीब काम जाहिर हो रहे थे, मिरेकल्स हो रहे थे और लोग यीशु को कबूल कर रहे थे। ये ज़रूरत थी और आज भी इसकी ज़रूरत है। और क्या आज मौजज़ात रूनुमा होते हैं? इसका जवाब आप अपने आप से पूछ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी से ले सकते हैं। ये सवाल दूसरों से करने के बजाय हम में से हर एक ईमानदार अपने आप से सवाल कर सकता है कि क्या मौजज़ात होते हैं? और आप में से हर एक का जवाब आज भी हाँ में होगा जब आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। आप में से हर एक की ज़िंदगी में बहुत से मौजज़ात आपको ये याद दिलाएंगे कि मौजज़ात आज भी रूनुमा होते हैं, लेकिन उन मौजज़ात की कुदरत, उन मौजज़ात का बरकत और महवर और उन मौजज़ात का सबब क्या है, वो यहाँ पर पतरस और यूहन्ना के बातों से जाहिर होता है। मांगने वाले ने उनसे भीख मांगने की कोशिश की और तीसरे बाब की 4 में लिखा है, पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। और उसके बाद 6ठी आयत के आखिरी से लिखा है, यीशु मसीह के नाम, नासरी के नाम से चल फिर, यानी यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मौजज़ात का सबब क्या है? यीशु मसीह नासरी, यीशु मसीह। मौजज़ात का सबब क्या है? रीजन क्या है? बुनियाद क्या है? बेसिस क्या है मेरी कल्स की हमारी जिंदगी में? खुदावंद यीशु मसीह जो खुद जिंदा है, जो खुद मौजज़ात की कुदरत रखता है, जिसका इस दुनिया में आना एक मौजज़ा है, उसकी पैदाइश एक मौजज़ा है, उसका मौत पर फतह पाना मौजज़ा है, उसकी पूरी जिंदगी लोगों को मौजज़ात जाहिर करते हुए और मौजज़ात दिखाते हुए गुजरती है। उसकी खिदमत मौजज़ात से भरपूर है और यूहन्ना उसके बारे में मौजज़ात का जिक्र करता है। यूहन्ना की इंजील के आखिरी बाब को जब हम देखते हैं तो उस किताब इसमें लिखा है कि यूहन्ना की इंजील और उसका 20वां बाब और उसकी 3वीं आयत, यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये से लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु खुदा का बेटा मसीह है और ईमान के वसीले से जिंदगी पाए। और इसी तरह यूहन्ना की इंजील के 21वें बाब की आखिरी जो आयत है उसमें लिखा 25वीं आयत में, और भी बहुत से काम है यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में एक गुंजाइश ना होती। यानी हजार लाखों की तादाद में काउंटलेस मिरेकल्स लोगों की जिंदगी में हुए जो यीशु के पास थे। यीशु के इर्द गिर्द के लोग थे, काउंटलेस मिरेकल्स उन्होंने देखी। और यूहन्ना कहता है कि अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो किताबों की गुंजाइश न रहती। और कलीसिया को इसी तरह काउंटलेस मिरेकल्स की आज भी जरूरत है, लेकिन उसके लिए यीशु की जरूरत है। कलीसियाओं को यीशु की जरूरत है। अगर हम अपनी जिंदगी में मिरेकल्स देखना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में मौजज़ात देखना चाहते हैं, तो उसके लिए यीशु की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगियों में यीशु की जरूरत है, हमें अपने घरानों में यीशु की जरूरत है, हमें अपनी कलीसियाओं में यीशु की जरूरत है। हम मौजज़ात भी पाना चाहते हैं और यीशु को अपनी जिंदगी में जगह भी नहीं देते। हम मौजज़ात को भी हासिल करना चाहते हैं, मौजज़ात को देखना चाहते हैं और कहते हैं कि अब तो वो मौजज़ात नहीं होते, अब तो हम नहीं मौजज़ात देखते। लेकिन अगर हम अपने आप से सवाल करें तो हमें बहुत से मौजज़ात भी नजर आएंगे, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में मौजज़ात को देखना और अपनी जिंदगी में मौजज़ात करना चाहते हैं, हमें यीशु को अपने साथ लेने की जरूरत है। पतरस और यूहन्ना और इब्तदाई कलीसिया दुआ करती थी, एक दिल होकर दुआ करती थी, इकट्ठे होकर दुआ करती थी, ईमान में मजबूत थी। उनका ध्यान और ख्याल, उनकी तवज्जो, उनकी आंखें, उनका दिल यीशु के साथ लगा हुआ था और उनकी जिंदगी में मौजज़ात थे। इसी तरह की जरूरत आज भी है कि मौजज़ात की जरूरत इब्तदाई कलीसिया को भी थी और हमें भी है, क्योंकि मौजज़ात के जरिए से ईमान मजबूत होता है। मौजज़ात के जरिए से लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। लोग मौजज़ात के जरिए से यीशु को जानते हैं, यीशु को देखते हैं, यीशु को अपनी जिंदगी में पाते हैं और यीशु की कुदरत को जान पाते हैं। इसलिए मौजज़ात बड़े जरूरी हैं कि वो हमारी जिंदगी में हो और हमारे वसीले से दूसरों की जिंदगी में भी हो। जहाँ जहाँ पर हम काम करते हैं, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे दोस्तों में, हमारे इर्द गिर्द, जब हमारे वसीले से मौजज़ात होंगे तो लोग यीशु को जानेंगे, यीशु की कुदरत को जानेंगे। बड़ी दफ़ा आपने ये तजुर्बा किया होगा कि लोग आपको दुआ के लिए कहते होंगे, गैर मसीही लोग भी दुआ के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी दुआ में कुदरत है। लेकिन इस दुआ की कुदरत को लोगों पर जाहिर करने के लिए, मौजज़ात को उन्हें दिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में यीशु, और ये बहुत बड़ी कुदरत, बड़ा अख्तियार है यीशु ने अपने शागिर्दों को दिया और हम में से भी हर एक को देना चाहता है। ये रूह कुदस की नेमत है, शिफा की नेमत है, मौजज़ात की कुदरत, ये रूह कुदस की नेमत है, यहाँ में से हर एक को मिल सकती। हमें मांगने की ज़रूरत है और इतनी कीमती है कि पतरस ने कहा कि सोना और चांदी, सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। उनके लिए एक बहुत बड़ी बरकत थी, उनके लिए बहुत बड़ी दौलत थी कि वो मौजज़ात करते हैं। वो उसको हकीर नहीं जानते थे, उसको बहुत बड़ी दौलत समझते थे। मौजज़ात देखने की कुदरत, देखने की बरकत और मौजज़ात करने की बरकत, मौजज़ात करने की नेमत और मौजज़ात को अपनी ज़िंदगी में वसूल करने की बरकत, ये दोनों एक बहुत बड़ा खजाना है। ये दोनों बड़े कीमती खजाने हैं। ये रुपए पैसे से कहीं बढ़कर हैं कि हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात हो। ये दौलत से कहीं बढ़ के मौजज़ा है कि हमारी ज़िंदगी में शिफा हो, हमारी ज़िंदगी में सेहतमंदी हो, जो उस लंगड़े भिखारी ने अपनी ज़िंदगी में वसूल की, उसने रिसीव की। और पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर, और एक बहुत बड़ी बरकत, बहुत बड़ी दौलत उसने उनको दे दी, वो उस भिखारी को दे दी। और वो भिखारी खड़ा हो गया, उसके पांव टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, चलता और कूदता हुआ खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। मौजज़ात का असर देखे। जब मौजज़ात रूनुमा होते हैं तो जिंदगियां बदलती हैं। उस शख्स की जिंदगी बदल गई, उछलता कूदता हुआ खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। वो जगह पर नहीं बैठा जहां पर वो मांगता था, वो वहां पर नहीं रहा, उसने एक नई जिंदगी का आगाज किया। और नई जिंदगी का आगाज किया था कि वो शागिर्दों के साथ मिल गया और हैकल में गया ताकि वो दुआ कर सके, शुक्रगुजारी कर सके, खुदा की हमद कर सके। उसकी जिंदगी बदल गई मौजज़े से। आपकी जिंदगी में मौजज़ों से या आपके जरिए से मौजज़ों से कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं। हमारी जिंदगियां बदल सकती हैं जब हमारी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं, जब हम दूसरों के लिए मौजज़ात करते हैं, दूसरों की दुआ करते हैं, उनकी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं, उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। वो यीशु को जान सकते हैं जिस तरह इस लंगड़े भिखारी की जिंदगी बदल गई और वो हम करता हुआ कूदता हुआ और खुदा की हैकल में चला गया, शागिर्दों के साथ मिल गया ताकि उनकी बातें सुने, उनकी तालीम सुने और ज़्यादा बरकत पाए। उनके साथ मिल गया, उनके साथ फेलोशिप रखने लग गया और ये एक पेशीन गोई भी पूरी हुई। यशायाह की किताब में हम इस पेशीन गोई को पढ़ते हैं। यशायाह की किताब उसका 35वां बाब उसकी 6-8 में यीशु के बारे में पेशीन गोई है। यशायाह की किताब उसका 35वां बाब और 5 6 आयत कहती है, उस वक्त अंधों की आंखें वाक की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हरन की मानद चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी। यहाँ पर क्या, लंगड़े हरन की मानद चौकड़ियां भरेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि वो लंगड़ा भिखारी कूदता हुआ खुदा की हमद करता हुआ उसके साथ आ गया क्योंकि हैकल में चला गया। यानी हरन की तरह चौकड़ियां भरने वाली बात उसने की कि वो कूदता हुआ, जंपिंग करता हुआ खुशी के साथ, वो जो चल नहीं सकता था वो कूदता हुआ हैकल में चला गया, खुदा की हमद करने के लिए चला गया। उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज भी कलीसिया को मौजज़ात की ज़रूरत है और मौजज़ात आज भी रूनुमा होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। रूह कुदस की इस नेमत को मांगने की ज़रूरत है, जो कलीसिया की ज़रूरत है, जो हमारी ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात को लेने के लिए इसकी ज़रूरत है, हमें दूसरों की ज़िंदगी में बरकत का बायस बनने के लिए इसकी ज़रूरत है। इसलिए हर कलीसिया को मौजज़ात वाली कलीसिया होना चाहिए। जिस तरह इब्तिदाई कलीसिया में अजीब काम और मौजज़ात होते थे, दुआ करें, खुदा के हुज़ूरी में झुक जाएं कि हर एक कलीसिया मौजज़ात वाली कलीसिया, हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात हो और हम दूसरों की ज़िंदगी में मौजज़ात का बायस बनें। कितनी खूबसूरत बात होगी, कितनी आइडियल कलीसिया होगी, चर्च होगा, आइडियल चर्च होगा, खुदा का पसंदीदा चर्च और कलीसिया इस दुनिया में, ज़मीन पर और इस मुल्क में होगी, जिस कलीसिया के लोग जो हैं वो शिफा की नेमत को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे।
जो ना सिर्फ खुद शिफा पाएंगे, दूसरों को शिफा देंगे। ये रूह कुदस की नेमत है, ये हमें मानने की जरूरत है। शिफा की नेमत, मुजज़ात की कुदरत, ये यीशु के वसीले से मिलती है। यीशु ने ये इख्तियार अपने शागिर्दों और अपने लोगों को दिया है। हमें इस इख्तियार को इस्तेमाल करने की जरूरत है, इस इख्तियार को मांगने की जरूरत है, ताकि हम कुव्वत पाकर इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बरकत का बायस बन सकें। शागिर्दों को जब यीशु ने इख्तियार दिया, खुदा के कलाम लिखा है कि वो 70 खुश होकर वापस आए, फिर यीशु के पास आए और उन्होंने कहा कि तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। बड़े खुश हुए। यीशु ने इख्तियार देकर भेजा कि बदरूहों पर गालिब आओ, बदरूहों को निकालो, बीमारों को शिफा दो। वो खुश होकर वापस आए और उन्होंने कहा कि तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। तो यीशु ने कहा कि मैं आसमान से शैतान को बिजली की तरह गिरा हुआ देखता हूँ। यानी यीशु हमारे वसीले से शैतान को गिराता है, हमारे वसीले से शैतान को शिकस्त देना चाहता है, लेकिन वो यीशु के नाम के वसीले से देते हैं। लेकिन हमें भी इसी तरह से यीशु के नाम के वसीले से शैतान को शिकस्त देने वाला बनने की जरूरत है, क्योंकि खुदा की ये ख्वाहिश, यीशु की ये ख्वाहिश है, यीशु की ये मर्जी है कि हमारे वसीले से शैतान शिकस्त पाए। इसलिए जरूर हमें बतौर कलीसिया मौजज़ात वाली कलीसिया बनने की जरूरत है। हमें से हर एक को इस नेमत को पाने की जरूरत है। हमें से हर एक ये नेमत पा सकता है, ये सिर्फ चंद खुदाम के लिए नहीं है, ये नेमत हर एक के लिए। आप भी, मैं भी इस नेमत को पा सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात को आज भी देख सकता हूँ, तजुर्बा कर सकता हूँ और दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकता हूँ। इसलिए ज़रूर इस नेमत को हासिल करने के लिए दुआ करें, ताकि हमारी कलीसिया मौजज़ात की और बरकतों वाली कलीसिया पाए। दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे ज़िंदा ज़मीरती खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू मौजज़ात का खुदा है, तू जिंदा खुदा है। तेरे बेटे यीशु के नाम से मौजज़ात होते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम में फतह है। तेरा कलाम ये कहता है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से वो निजात पाए। तेरा शुक्र हो खुदा कि हमारे पास यीशु नाम है, हमारे पास सबसे आला नाम है जिसके जरिए से हम फतह पा सकते हैं। खुदा में बतौर कलीसिया मौजज़ात वाली कलीसिया बना, ताकि हमारे घरानों में, हमारी ज़िंदगियों में मौजज़ात हो, ताकि हम अपने अजीज़ों, अपने दोस्तों की ज़िंदगी में, गैर मसीहियों की ज़िंदगी में जो हमारे इर्द गिर्द हैं, उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात के वसीले से यीशु के पास आ सके, यीशु ने दिखा सके, वो यीशु को जान सके, मौजज़ात के ज़रिए से यीशु को जान सके, लोग बरकत पाएँ। खुदा हमें ज़िंदा गवाही देने वाली मौजज़ात वाली कलीसिया बना दे। तो हमें रूह कुदस की ये नेमत दे, ताकि हम लोगों के लिए शिफा का बायस मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 291 गाएंगे, क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ा है जवान। गीत नंबर 291, 291, क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ा है जवान। आगे बढ़
फरहान सलीम, वल सलीम प्यारा, उम्र 31 साल, हालत कमवारा, इत्तेहाद कॉलोनी, मकान नंबर 1, गुलबर्ग 3, लाहौर का रहने वाला की शादी रुबीना बाबर, दुख्तर बाबर मसीह, उम्र 35 साल, हालत कमवारी, मुगलपुरा गढ़ी शहर लाहौर की रहने वाली के साथ 4 जुलाई 2020 को होना करार पाई है। और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो आप हमें बता सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं मुझे, ताकि हम एतराज़ अगर हो तो हम उसको देख सकें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए क़ुद्दूस, हमारे ज़िंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम इस हफ्ते का आगाज़ तेरे बेटे यीशु के नाम से करते हैं। और जिस तरह गुज़श्ता हफ्ते में खुदावंद तूने हमें महफूज रखा है, इसी तरह खुदावंद इस हफ्ते में भी हमें महफूज कर, हमारी कलीसिया को, हमारे घराने को, हमारे ख़ानदान को खुदावंद तू महफूज कर दे। कोई बीमारी, कोरोना का कोई जरासीम या कोई तकलीफ, हादसा तेरे लोगों के पास ना आने पाए। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की कुदरत के वसीले से हम बरकत पाएँ। तेरा हाथ खुदावंद पर बढ़ जाए। तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ। खुदावंद तू हमारे साथ हो, हमारी हिफाजत और रहनुमाई कर, और तेरे बेटे यीशु के नाम की कुदरत के वसीले से हम बरकत पाते जाएँ, ईमान में मजबूत होते जाएँ और तुझ में महफूज रहें। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज भी बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।